Hello everyone, this is Devil and welcome back to your Sa. Today I'm gonna teach you a beautiful concept that is called as standing off for yourself by Yevgeny Yevtushenko, a Russian famous writer. But before going to that, a small request to you: if you are new to my channel, then kindly like it, share it and subscribe it so that I will be motivated by your love and affection. Standing off for yourself title suggests that you have to stand for yourself. You have to stand for all your activity. हिंदी में बोल सकते हैं खुद के लिए खड़ा होना, यानी कि stand for yourself. Okay, it was written by Yevgeny Yevtushenko, a famous Russian writer. And one more thing you need to understand, that here the writer is explaining his childhood incident, because here the central character is no other than the writer himself. That means he is reminding about his childhood life when he was a small kid. Okay, now we will go to the character analysis, because without the character analysis it cannot be done. Here there are two more characters, both of them are important. One is the writer himself, number one. Number two is Red. At first we have to explain about writer. So here writer's family is not well settled. His parents were divorced. His father was staying in Kazakhstan with his another wife and kid, and here in Moscow his mother living alone with the writer. But here the mother also working as a singer in the army. That's why she has to move with army. The result is simple: the writer is living like orphan. Okay, he is living in the street, he is living alone, and with this reason he got so many bad attributes from the street. Okay, like smoking, like fighting, like spitting. These are the bad drastic attributes he got it from the street. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे राइटर होते हैं ना, यवगेनी येवतुशेंको, उनका जो चाइल्डहुड यानी कि उनका बचपन अच्छा नहीं होता. उनके पापा और मम्मा का डाइवोर्स हो जाता है और पापा जाके रहते हैं काजाकिस्तान में. काजाकिस्तान यानी कि एक छोटा सा कंट्री रसिया के साइड में है, ठीक है. और वो फिर से शादी कर लेते हैं और अपनी फैमिली के साथ वेल सेटल है. और यहाँ पे क्या हुआ, राइटर और उनके माँ साथ में रहते हैं और फिर से एक प्रॉब्लम आ जाता है. जो उनका मम्मा है, शी वॉज वर्किंग एज ए सिंगर फॉर आर्मी, यानी कि वो आर्मी के कॉन्सेप्ट में गाना गाती थी. तो आर्मी जहां जाती थी उनके मामा को वहां जाना पड़ता था. बिकॉज ऑफ दिस रीजन हिज फादर वाज इन काजाकिस्तान, हिज मदर वाज इन आर्मी. द रिजल्ट इज दैट द राइटर इज लिविंग लाइक ऑर्फन. ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, वो माँ पापा के होते हुए भी ऑर्फन के जैसे जीने लगे, क्योंकि मामा थी आर्मी में, पापा थे काजाकिस्तान में. तो यहाँ पे हमारे छोटे से राइटर बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं. और यहाँ पे होता क्या है, आज सभी ऑर्फन के साथ होता है. जब हमें कोई केयर करने वाला नहीं होता, जब हमें कोई प्यार करने वाला नहीं होता, हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने नेबर से, अपनी स्ट्रीट से. सो द राइटर गॉट सो मेनी बैड एक्टिविटीज फ्रॉम द स्ट्रीट. स्ट्रीट से उन्हें बहुत कुछ खराब सीखने को मिलता है, जैसे कि स्मोक करना, इतनी छोटी सी उम्र में स्मोक करना, फाइट करना, गाली देना, थूकना, स्वेर करना. ये सब बुरी बातें वो सीखते हैं. कहाँ से? स्ट्रीट से, क्योंकि उन्हें प्यार करने वाला, उन्हें केयर करने वाला कोई भी नहीं था. तो हम बोल सकते हैं यवगेनी येवतुशेंको जो बचपन था उनका, वो बचपन सिक्योर नहीं था, वो बचपन अच्छा नहीं था. Now we will go to the another important character. His name is Red. Now I will tell you some attributes of Red. Number one, Red is a 16-year-old boy, but he is looking broad. He's having broad shoulder and big height. He's looking like muscular. He's having cat's eyes and his hair is like a fiery cascade. There is a phrase that his forelock
is tumbled down in fairy cascade. I will explain you detail after 1 or 2 minutes. Okay, and he's having cat's eyes, plus he is having lieutenant, that means he is having a special army. Okay, and the more problematic thing is that he is carrying a weapon, and the weapon is called as Knuckle duster. With this weapon he can attack anyone. So basically what they do, Red and all of his lieutenant, they can go towards any boy and say money, then that boy has to give money to Red, otherwise Red can strike the boy with the Knuckle duster. ठीक है, तो जो सेकंड कैरेक्टर है उसका नाम है रेड, जो कि एक 16 साल का बच्चा है, लेकिन वो दिखने में 16 साल के जैसा नहीं लगता। उसका ब्रॉड शोल्डर है और हाइट ज़्यादा है, वो एक मस्कुलर बुल के जैसा लगता है। ठीक है, और उसका जो आइज है ना वो कैट के जैसा यानी कि बिल्ली के जैसा है, और उसको बोलते हैं फोरलॉक टम्बल डाउन इन ए फेरी कैस्केड। फोर का मतलब फ्रंट, लॉक का मतलब हेयर, फोरलॉक यानी कि फ्रंट हेयर, टम्बल डाउन इन ए फेरी कैस्केड। टम्बल का मतलब नीचे गिरना, फेरी का मतलब है आग, कैस्केड का मतलब है झरना, यानी कि रेड की जो आइज है ना वो बिल्ली के जैसा है, लेकिन उसका जो हेयर है फ्रंट का वो आग के झरना की जैसे सामने आता है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारी मन में डर क्रिएट करता है, किसके लिए? रेड के लिए। प्लस रेड के पास एक नकल डस्टर होता है और बहुत सारे लिeutenants यानी कि चमचे लोग रेड के पास रहते हैं। ठीक है, रेड किसी भी बच्चे के पास जाता है और बोलता है मनी, यानी कि उस बच्चे को अपनी सभी पॉकेट मनी रेड को देना होगा। अगर वो दे देते तो ठीक है, अगर नहीं देते तो रेड अपने नकल डस्टर से उन्हें स्ट्राइक करता। इसीलिए आसपास के जितने भी बच्चे थे दे ऑल आर अफ्रेड ऑफ रेड, वो सब रेड से डरते हैं, वो सब रेड से नफरत करते हैं, इंक्लूडिंग राइटर। जो हमारे नन्हे मुन्ने राइटर भी है ना वो भी रेड से नफरत करते हैं या फिर उनसे डरते हैं। आज आई मेंशन दैट एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ रेड, यानी कि रेड से सब डरते थे इंक्लूडिंग आवर राइटर्स। सो in order to overcome his fear on Red, he wrote a poetry. In that poetry, he criticized Red. He criticized his wrong activities. That means everyone of the street started praising the writer because he wrote a poetry against that person who everyone hates. तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपने डर था ना उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए राइटर क्या करते हैं, एक पोएट्री लिखते हैं। ठीक है, और उस पोएट्री में उन्होंने रेड को क्रिटिसाइज किया था, रेड को काफी खरी खोटी सुनाई थी, काफी बुरा भला कहा था और बहुत सारे क्रिटिसाइज किया था। और जब ये जो पोएट्री सबने सुना, दे ऑल प्रेज, वो सबने प्रेज करना शुरू कर दिया, किसे? राइटर को। वो बोले ठीक है, अच्छा किया। क्यों? क्योंकि वो गंदा लड़का है, सबको मारता है, सबको परेशान करता है। तुमने जो पोएट्री लिखा और उस पोएट्री में जो उसको गाली दिया, उसको जो क्रिटिसाइज किया, वो तुमने बहुत अच्छा किया, ब्रावो, यानी कि यू आर वेरी ब्रेव। और यहाँ पे जो क्या हुआ, जो राइटर है ना वो भी खुश हो गए क्योंकि सभी ने शाबाशी दिया। क्या हुआ कि सब तो डरते थे, ये भी डरते थे, लेकिन अपने डर को जीत में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने एक पोएट्री लिख दिया और उस पोएट्री में उन्होंने पंगा ले लिया रेड से, क्रिटिसाइज कर दिया रेड को, बोल दिया कि रेड तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, बेकार का काम है, तू अच्छा नहीं है और हम सब तुझे नफरत करते हैं। ठीक है, वो तो लिख दिया पोएट्री में। और जब वो पोएट्री फेमस हो गया ना, आसपास के जितने भी थे उन्होंने अच्छा बोला अच्छा किया, प्रेज करना शुरू कर दिया, किसे? राइटर को। बोले अच्छा काम किया आपने। ठीक है, तो ये सुन के जो हमारे नन्हे मुन्ने राइटर है वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा पहला वाला गिफ्ट है। ठीक है, पहला वाला गिफ्ट, ये प्रेज मिलता है या और कुछ मिलता है, हम आगे जानेंगे। तो कुछ दिन बीत जाते हैं। ठीक है, 2 or 3 weeks happen and one day the writer is coming home from school. Suddenly Red came and stand in front of him. Okay, and he said, "Oh boy, you are the poet who criticized me." And within a second, with his knuckle duster, he struck
the writer. That was a severe and powerful punch, so heavy that the writer fell down and lost his consciousness, and he was admitted in the hospital for some day with his head was bandaged. तो एक दिन क्या हुआ, ये जो पोएट्री का इंसिडेंट था, कुछ दिन बाद राइटर स्कूल से आ रहे थे, सडनली उन्हें सामने रेड मिला और रेड उन्हें गुस्से से घूर रहा था कि तूने ये लिखा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो ऑल ऑन ए सडन, मतलब थंडर के स्पीड से वो अपना नॉकल डस्टर निकालता है और एक सॉलिड पंच मार देता है, किसे, राइटर का। वो पंच इतना पावरफुल था, राइटर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और उनका जो सर होता है ना वो टूट जाता है और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये था उनका पहला गिफ्ट पोइट लिखने के वजह से। तो ये जो हो गया ना, इसके बाद से जो राइटर के मन में रेड के खिलाफ बहुत सारा डर रह गया। द राइटर वॉज अफ्राइड ऑफ Red even more because of the knuckle duster punch. When he released from the hospital for the second time, he has encounter with Red, and this time he ran away. वो डर के भाग गए। He has no power to stand in front of the Red. He was run like a coward. एक coward के जैसे वो भागने लगे। कौन? हमारे नन्हे मुन्ने writer. But later on he started crying. He was upset because he thought himself as a coward. He was upset not Red strike him. He was upset not because of the poetry. He was upset because he ran away. वो खुद को गाली देने लगे, वो खुद को कोसने लगे। वो बोले कि मैं इतना कावड़ हूँ क्या कि मैं एक लड़के से डर के भाग गया। इट वॉज ए रिपेंट टाइम स्टूडेंट। वो खुद को गाली देने लगे, वो खुद को बोले कि मैं गंदा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं डरपोक हूँ, और ही स्टार्टेड टू चेंज हिमसेल्फ। वो खुद को बदलने लगे। Now it is the time for retaliation, it's the time for retribution, it is the time for revenge. The writer wanted to overcome his fear on raids, so what he did, he purchased a small book. That book is a Jiu-Jitsu book. So what is Jiu-Jitsu? Let me tell you. Jiu-Jitsu is a martial art book in which one form of karate, that is called Jiu-Jitsu, has been taught. He learned that Jiu-Jitsu from the book, number one. Number two, what he did, he went to the gym and tried to increase his weight and tried to build his muscle. He practiced that with his friend, and after some week, our writer was got damn ready to take revenge from Red, and after that he went in search of Red. ठीक है, तो जो हमारे राइटर हैं वो तैयारी में लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक बुक्स खरीदते हैं, उसका नाम था जूजित्सु बुक। जूजित्सु एक जापानीज काइंड ऑफ मार्शल आर्ट टेक्निक है, कराटे जैसा, और वो उस बुक्स को पढ़ के उससे जूजित्सु प्रैक्टिस करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ वो जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपनी मसल पावर को बढ़ाते हैं और रेड को सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो रेड को ढूंढते हैं। One day, while doing this, he saw Red is sitting in a corner in a garden and playing card games. So the writer got a chance. He went near Red and kicked his cards, and all the cards are scattered. Red was surprised. He turned around and looked to the writer. He was damn surprised because the writer was the boy whom he attacked weeks ago, and again the writer came. He was furious. He wanted to strike the writer, but the writer, using his jujitsu skill, thrust the Red and the Red fall on the ground. He was surprised. He can't believe what is happening. Like a maddened fool, he again wake up and bring out the knuckle duster and try to give the same punch to the writer, but this time the writer caught his hand and twisted it. Red fell down
the knuckle duster fell down from the hand and Red was started crying. That means Red accepted his defeat. He's crying like a kid. Now that so-called Gunda, the so-called goon is crying like a babe. तो अभी क्या हुआ, रिट्रीब्यूशन का टाइम आ गया या फिर बोल सकते हैं रिवेंज का टाइम आ गया। अभी राइटर ढूंढने लगते हैं रेड को। रेड पास में गार्डन में बैठ के एक कार्ड गेम खेलता रहता है। तो राइटर जाते हैं और किक मार के उस गेम को खराब कर देते हैं। रेड गुस्से में आ जाता है और वो राइटर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन राइटर अपनी जूजित्सु यूज करके रेड को ही नीचे गिरा देते हैं। जब पहली बार रेड नीचे गिरता है तो जितने भी लोग थे सब सरप्राइज हो जाते हैं कि पहली बार किसी ने रेड को मारा था, और रेड खुद भी डर जाता है और सरप्राइज भी हो जाता है। वो अपना नॉकल डस्टर फिर से निकालता है और राइटर को मारने की कोशिश करता है, और फिर से राइटर उसके हाथ को पकड़ते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं, जिसके वजह से रेड नीचे गिर जाता है और जो नकल डस्टर होता है ना वो उसके हाथ से गिर जाता है और रेड रोने लगता है बच्चों के जैसा। और आप सोचिए कि वो कैट वाला आइज जो एक बड़ा वाला मस्कुलर लड़का था वो एक मतलब भीगी बिल्ली के जैसा रो रहा है अभी। तो यहाँ पे राइटर की जीत होती है। राइटर सक्सेसफुली जो अपना रिवेंज था, जो अपना ह्यूमिलिएशन था, उसका बदला ले लेते हैं। और उसी दिन से रेड भी चेंज हो गया, क्योंकि उसे पता था डर खत्म हो गया। जब तक डर खत्म नहीं होता कोई भी हार नहीं मानता। और यहाँ पे जो डर था रेड को लेके सभी के दिल में, वो डर फिलहाल रुक जाता है और रेड अपनी गलती मानकर वहाँ से रोते रोते चला जाता है। और राइटर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड खुद लिया। उन्होंने एक पोइट्री लिखा, उस पोइट्री में उन्होंने रेड को क्रिटिसाइज़ किया। रेड ने उनको मारा लेकिन वो डरे नहीं, वो रेड का मुकाबला किए, अपना जो डर था उससे लड़े। जो भी उन्होंने किया उसके लिए स्टैंड भी किया। This concept is giving a small message. The message is very simple, that we should not afraid of anyone, number one. Number two, that we have to stand for our truth. That means whatever we do, we have to stand for that. Like the poet or the writer wrote a poetry. He stands for that. He took responsibilities of his action. Similarly, in our life, we have to do this. We should not afraid of anyone, and we have to stand for our own self. So my dear student, this is all about today's concept. I hope you will like it. If you like it, then kindly subscribe, share and comment. This is Devil bidding you goodbye.